Good morning, ladies and gentlemen. Myself Mihir Sanjay Usar. Today I am presenting you non-verbal communication. Basically, I am requesting you for your 10 to 20 minutes. You have to concentrate on the presentation. If you are not comfortable, you may leave, sir, or I will not say nothing. There is no compulsion for me. Because this is not just an ordinary presentation that मैं बोलने जा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मुझे interaction चाहिए थोड़ा. If you have any kind of doubt, you may tap or raise your pen. I will give you all the answer on this spot or after presentation. I will. So let's get started. Are you all interested or not? I want to hear from you. Yes. I want to see your enthusiasm. Not all dead speech. Yes, interesting and like all kind of stuff. Are you interested? Yes. Again, last time. Are you interested? Yes. So let's see. Introduction. In introduction, one question is that what is meant by non-verbal communication? Anyone is there who is not comfortable with English? Any one of you? कोई है जिसे अलग लैंग्वेज में चाहिए? I can present you in Marathi or in Hindi. You don't worry. I will give my presentation in mostly Hindi and English. So, what do you think about non-verbal communication? Non-verbal communication माने एक ऐसे टेक्निक है जो हम लोग from starting of birth से शुरू करते आ रहे हैं. डे टू डे लाइफ में non-verbal communication जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, बट हम doesn't matter it all. जैसे कि किसी अजनबी से हम टकराए, we will say thank you, sorry and all this for me. But अगर हम we are in rush, then we say it doesn't matter. But it affect a lot. Non-verbal communication जो है वो हमारे इंडस्ट्री में it not only travel and tourism but multiple industries है जिसमें बहुत काम की चीज़ें. Just for example, आप कहीं पर भी presentation दे रहे हो, so what is your expectation that we will see in further this time. So non-verbal communication के types जो है वो there are 5. First type will be eye communication with body. Then facial expression जो है that will be a 4 or we can consider as third. Paralingual है and then last one will be a culture. Don't take it culture in different manner. Culture के एक से छोड़कर nearby there are 20 different types of meaning of word culture. So we will start with eye to eye connection, eye contact or eye to eye communication. Anyone have any kind of doubt? No. Any kind of? 12 क्यों दिख रहे हैं मुझे चेहरे पे? काही डाउट आहे? असेल विचार, काही हरकत नाहीये. थोडासा टाइम इंक्रीज होईल, बाकी काही नाही. कारण आता जर हिता आपण डाउट क्लिअर केले तर फर्दर वी कॅन परफॉर्म बेटर. काही डाउट असेल विचार, सिली क्वेश्चन असेल तर मी आन्सर करायला तयार आहे. सो we will start with eye to eye contact और eye to eye communication. Usually हम देखते हैं ये जो communication है ये सारे लोग neglect करते हैं. अगर सामने का बंदा हमसे बात कर रहा है, what he or she is expecting कि आप उसके आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, not like कि हाँ बता, या फिर स्टेयर कर रहे हो, गुस्से से देख रहे हो. नहीं, आपको नॉर्मली ब्लिंक भी करना है. आप अगर बिना ब्लिंक करे उसे देख रहे हो देन वो बंदा करता रह जाएगा या फिर डर जाएगा कि ये क्या है. आई टू आई कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो आई टू आई कम्युनिकेशन जो है वो मैटर इसलिए करता है कि सामने के बंदे को आप जो कुछ भी कह रहे हो वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, वो सुन रहा है, उसे समझ में आ रहा है. अगर आपके सामने डेफ पर्सन भी बिठाई गया, आपके हैंड एक्सप्रेशंस जो है वो इस कदर होने चाहिए आई टू आई कांटेक्ट के साथ साथ कि उसे भी समझ में आना चाहिए कि या हाँ ये बंदा मुझसे कांटेक्ट कर रहा है. अगर आपके सामने कोई शेक हैंड करे, सर क्या, सो माई सेल्फ मिहिर संजय सर एंड मी, हम दोनों कांटेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, बट वी आर ब्लिंकिंग, स्माइलिंग. दिस इज आई टू आई कम्युनिकेशन. अगर किसी ने हाथ बढ़ाया, आप
लॉक करके या फिर बैकवर्ड करके नहीं हो सकता। आपका ई लेवल जो है वो ज़्यादा रहेगा, या फिर ही विल थिंक दैट समथिंग आई हैव डन वियर्ड, आई एम वियर्ड पर्सन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर बॉडी कॉन्टैक्ट। बॉडी कॉन्टैक्ट या फिर बॉडी एक्सप्रेशन में इसमें भी बहुत सारे पोस्चर आते हैं। सम लाइक हम फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, वी आर टोटली रिलैक्स, हम कैसे भी बात कर सकते हैं या फिर हमारे हैंड एक्सप्रेशंस कैसे भी मूव कर सकते हैं, बट नॉट इन टेक्निकल फील्ड। वी आर गाइड्स, वी आर वर्किंग इन सर्विस इंडस्ट्री। हमें कुछ ना कुछ तो भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। हमें हमारे सामने जो क्लाइंट आने वाला है वो कहाँ से आने वाले हैं, उसके यहाँ पर कौन से एक्सप्रेशंस जो है वो उसे हर्ट कर सकते हैं। हमें वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि समटाइम्स वी विल स्टैंड स्टिल। समटाइम्स हमारे सर्विस इंडस्ट्री में मोस्टली आप होटल रेस्टोरेंट्स में विजिट करोगे, आपके सामने वेटर भी आए या फिर कैप्टन, ही विल से गुड मॉर्निंग सर, व्हाट इज योर ऑर्डर, दिस इज परफेक्ट गेस्चर। अगर आप खुश रहे तो आप स्माइल करके हाथ ऊपर करके चिल्लाते हो, दैट ऑल इज आर पर्सनल पर्सपेक्टिव। सॉरी, थोड़ा बहुत अभी माय बैड। अगर इस बॉडी कॉन्टैक्ट में अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेस्चर है काइंड के। सम लाइक दिस मीन्स हमारे यहाँ पर ओके वेस्टर्न मिडल वेस्टर्न कंट्रीज में दिस गेस्चर इन जापानीज ट्रेडिशन दिस मीन्स मनी। अगर हम देखें इटालियन में दिस इज लेच। अलग अलग टाइप के हैंड गेस्चर्स रहते। नाउ सेकेंड वन दिस I had shown picture that is bad, down, and this all LOVE. This is for deaf people. लो, माने मैं अभी यहाँ पर एक परफॉर्म करके दिखा दो। My MY name is me, he, this will be for deaf people. हमें इतना फ्लक्चुएट रहना पड़ता है कि हमारे सामने अगर डेफ पीपल भी आ जाए, वो कांट स्पीक और वो कांट लिसन, वी शुड बी फ्लक्चुएट एंड कंफर्टेबल विद देम, क्योंकि उन्हें नहीं लगना चाहिए कि हमें खामी है। This all things matter. Next slide we will see paralingual. अगर इस टर्म को हम देखें ध्यान से, the linguistic is that term which is a part and parcel of our life. बात तो हम सभी करते हैं, जानवर भी देखे जाए तो कुत्ते भी बोलते हैं, that they also speak. But हमारे what is specialization in humans? What you all do? Answer me. भाई मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर कुछ हैवी वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो सबने कहा I'm kind of Hitler, बताओ नहीं तो फंसे भी चढ़ दूँगा। कंटिन्यू। इस पैरालिंगुअल एक ऐसा टर्म है जिसमें हम देखा जाए तो हमारा जो वॉइस लेवल है दैट वी कॉल एज एनर्जी लेवल, या फिर अलग अलग चीज़ें हैं। सो अगर कोई कंफ्यूज हो जाए बंदा तो वो ऐसे बात करता है डर के मारे। कोई कभी कभी हमारा गुस्से में पारा चढ़ जाता है, देन वी आर यूजिंग हाई पिच। कभी कभी हम जब लो रहते हैं देन वी आर यूजिंग लो पिच। ये सारे जो कंसेप्ट है दैट कम इनटू पैरालिंगुअल। हमें न्यूट्रल रहना है कौन से भी सिचुएशन रहने का। अगर आपके साथ कोई बुरी चीज़ हुई देन यू शुड कीप दैट असाइड, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये छोटी मोटी चीज़ें वी निगलेक्ट, बट ये हमारे लिए बहुत बड़ी डील हो सकती है। इफ़ यू हैव बिग प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपके कोई रिलेटिव से उनका एक्सीडेंट हो गया एंड यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ 15 क्लाइंट्स, आपको डर लगता है, ये सब चीज़ें दैट्स आर नेचुरल, बट हमें दिखाना नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, आप माइट भी आपको रोना आ रहा है, वो इन वॉशरूम 5 मिनट्स रो, आपके फ्लीस जो एक्सप्रेशंस है वो सब बाहर निकल, बट देन यू हैव टू बी न्यूट्रल। आके आकर आपको एक स्माइल देनी है अच्छे से,
आपका जो पीच है वो शुड बी अ कॉन्फिडेंट, नॉट दैट मच लो कि बंदा कहना चाहिए क्या हुआ है, ऐसा कोई नहीं कहना चाहिए. यू हैव टू रिएक्ट नॉर्मली एंड यू हैव टू परफॉर्म योरसेल्फ. इससे आपके लिए ये जो टर्म है पैरालिंगुअल, इससे आपको एक बेनिफिट मिल सकता है. यू माइट बी जो कहते हैं अचीवमेंट जो है वो अभी नहीं मिलेगा, ये आपको सब बोर लगेगा, पर आप जैसे बाहर की दुनिया में परफॉर्म करोगे तो अब आपको ये चीज़ मालूम पड़ेगी, इसका इम्पोर्टेंस देना. नेक्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशन. इन ह्यूमन बॉडी देर आर मोर देन 1000 एक्सप्रेशंस. मालूम नहीं रहेगा तो मोटी 1000 हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, अभी भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, 1000 से ज़्यादा हमने फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज किए हुए हैं. दिस आर 6 कॉमन फेशियल एक्सप्रेशन, दैट इज एंगर, डिस्गस्टिंग, फियर, सैड, जॉयलेस एंड सरप्राइज. ये सब होता ही रहता है. अगर कोई आपको बोनस मिल जाए, यू आर सरप्राइज, दैट टाइम योर टाइम इज बेस्ट, आप अच्छे से परफॉर्म करोगे. अगर आपको बॉस ने डांटा है, देन योर फेशियल एक्सप्रेशन विल बी अ सैड, आप थोड़ा सा लो फील करोगे, देन ऑल्सो यू हैव टू परफॉर्म बेटर. दैट इज इम्पोर्टेंट. नाउ डिस्गस्टिंग, अगर आपके सामने एक बंदा आया है जिसका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है एंड उसका फेस या फिर हाथ या फिर कोई भी पार्ट हो उसमें से ब्लीड कर रहा है, he had ड्रेसिंग किया हुआ है, बट सडन स्टेज के बाद वो आपके पास क्लाइंट आया, देन ऑल्सो थोड़ा बहुत ब्लड शीट्स वगैरह दिखाई दे रहे, वी डोंट हैव टू मेक डिस्कस फेस. वो आपसे आकर कुछ कह रहा है. सी यूजुअली ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है इसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए हमें इन नंबर्स ऑफ वीडियोस वगैरह मिलेगी वगैरह, बट माय सजेशन इज दैट जब तक हम खुद वहाँ पर रिप्रेजेंट खुद को करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इट विल नॉट मैटर. क्योंकि मैंने इन नंबर ऑफ वीडियोस देखे हुए टू परफॉर्म बेटर वगैरह, वो सब 5 मिनट्स का सब लाइक आता है कॉन्फिडेंस लेवल. ऑल फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो एंड टू एंड हमारे डेली बेसिस में बहुत सारी जगहों पर काम आते हैं. जैसे आई हैव सेड, दिस आर बेसिक 6. इफ आई विल से यू आर कंफ्यूज का फेशियल एक्सप्रेशन अभी मैंने यहाँ पर नहीं डाला हुआ है या नहीं है, दैट डजंट मैटर. देन व्हाट इज योर रिएक्शन इफ यू आर कंफ्यूज? ये सारी चीजें होती है, हम जस्ट वी आर निग्लेक्टिंग दैट. Now next is most important factor, that is culture. What is meaning of culture? आपको culture माने यहाँ पर इंडिया में concept अलग है, but when you have a foreign client, he is from Japan. Anyone of you like to perform? Mr. Sheikh, can you join me on stage? And if anyone Japanese, you have Japanese client, if you will say hello, he will bow simply and say hello sir. If you have Western client, he will shake hand. If you have Indian culture client, mostly Indians now do handshake, but sometimes Indians may say namaste. If you have an Italian client, don't directly give your hand or touch on his shoulder. That is considered as a rude manner in Italy culture. और directly आप अगर हाथ दोगे, then it might feel be a rude, but guy or another person will feel that much awkward कि वो boss I will not. ऐसे कंडीशंस होते हैं, हमें ये थोड़ी बहुत जानकारी रखनी पड़ती है कि कौन से फील्ड से कौन से कंट्री से क्लाइंट आते हैं. यहाँ पर एग्जांपल दिखाया गया है. टर्की में as I will say, this means as homosexual. In Western countries, this is meant by perfect. अच्छा है. एंड जापान में अगर ये हम सिंबल इंडिकेट करेंगे तो दैट मीन्स मनी. इन टर्की thumbs up, that is right. In our culture also, we are following Western culture. This is right, but in Japanese, this means fine. ऐसे बहुत सारे कल्चर्स के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स लेते हैं. नाउ जस्ट आई विल 5 मिनट्स आपको एक बात बता दूँ. व्हेन यू विजिट कोरिया, आप नॉर्थ कोरियन पार्ट में जा रहे हो तो आप वहाँ पर गिफ्ट जब प्रेजेंट करते हो, होस्ट एक्सेप्ट दैट यू विल प्रेजेंट गिफ्ट. आपको ग्रीन कलर से या फिर जो ग्रे कलर है उससे प्रेजेंट टाई अप नहीं करना, एंड यू हैव टू गिव
him a gift by this question. वहाँ पर आप जाओगे, किसी भी अगर आप स्टैंडर्ड ऑथेंटिक रेस्टोरेंट में जाओगे, वहाँ पर आपको स्लीपर्स निकाल कर रखने पड़ते हैं एंड यू हैव टू सिट इन दिस पोस्चर. इन इंडिया वी कॉल दिस एज वज्रासन पोस्चर. आपको वहाँ पर वैसे ट्रेडिशन से बैठना है. इन इंडिया वी हैव 4 टाइप कल्चर. हम मांडेला इन मराठी हम कहते हैं मांडी, इन हिंदी में कहते हैं बैठक. वो पोस्चर चलते हैं. इन वेस्टर्न कल्चर हम अगर चेयर पर बैठेंगे, वी आर सिटिंग लाइक दिस, नॉट लाइक दिस और लाइक दिस. दिस इज रूड इम्पैक्ट. ये सारी चीज़ें जो है कल्चर टू कल्चर अगेन डिराइव होते रहती है. अगर हमारे सामने एक आध दूसरा ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट आएगा, देन हाउ वी विल से, आप बैठिएगा, सर प्लीज हैव अ सीट, देन ही विल से. आपको ये चीज़ मालूम होगी या ना होगी, when you visit at Spain, you can't directly point out and say, have a seat. You have to present like this. This means a rude man. 3 fingers हमारे fold है, हम end this. It indicates that you are blaming me. Some kind of he had done rude thing. Thus all are completed in culture. And don't worry, day-to-day practice and experience make better in this all types of non-communication, or we can say non-verbal communication and all terms. And as expected, we are in service field. हमें इन number of knowledge मिलेगा ही. We have to achieve all the things that, and हमें शिकायत का मौका किसी को नहीं देना चाहिए. So thank you. Good.